الرحمان پر کیس کر دیا کہ اس نے مجھے اپنی زرعی رقبہ فروخت کر دیا ہے اور جعلی سٹامپ پیپر تیار کر کے جس کے مطابق حبیب الرحمان نے لاکھوں روپے وصول کر لیے تھے۔ عدالت میں حبیب الرحمان کے خلاف کیس دائر کر دیا گیا۔ حبیب الرحمان عرصہ 10 سال اپنی زرعی اراضی کا مالک بننے کے لیے اور اپنے ہی رقبے کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، جس کے بعد طویل عرصہ 10 سال بعد عدالتی حکم پر محکمہ مال نے پولیس کی مدد سے ملزم کے قبضے سے 26 کنال واگزار کروا لی ہے۔ حالیہ بجٹ میں چھوٹے ملازمین سے حکومت کا امتیازی سلوک۔ ایپکا الخدمت ضلع وہاڑی کے عہدیداران اور ممبران نے اپنے مطالبات کے حق میں پریس کلب وہاڑی کے سامنے سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی بھی نکالی گئی۔ احتجاجی مظاہرہ اور ریلی کی قیادت ضلعی صدر ایپکا طیب بھٹی اور میڈیا کوارڈینیٹر محمد التماس کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں پریس کلب کے باہر موجود نمائندہ سٹار ایشیا نیوز ارسلان احمد سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے حالیہ بجٹ میں چھوٹے ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف ایپکا الخدمت حاجی ارشاد گروپ کی جانب سے اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ضلعی صدر طیب بھٹی صاحب موجود ہیں۔ بھٹی صاحب بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ بجٹ جیسے IMF زدہ بجٹ ہے، اس میں ملازمین چھوٹے ملازمین کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں اور جس طرح جب گورنمنٹ نے اپنی بیوروکریسی کی تنخواہیں بڑھانی ہو 150 بڑھا دیتے ہیں، اراکین اسمبلی کی تنخواہیں بڑھا دیتی ہیں، وزیر اعظم صدر مشیروں کی تنخواہیں بڑھا دیتی ہیں، اگر جب باری آتی ہے چھوٹے ملازمین کی تو خزانہ خالی کا یہ بہانہ کر کے ہمیں یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے تناسب سے ہمیں بھی 150% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور یہ جو امتیازی سلوک ہے ملازمین کے ساتھ، پورے پاکستان کے ملازمین کے ساتھ یکسر سلوک کیا جائے۔ کب تک آپ کا یہ احتجاج جاری رہے گا؟ جب تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہ کیے ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کرتے رہیں گے اور ہم بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگائیں گے اور اسمبلی کا گھیراؤ بھی کریں گے۔ جی بالکل، ایپکا ضلعی صدر کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے احتجاجی جو ہے احتجاج ہمارا جاری رہے گا اور بلکہ بھوک ہڑتال کیمپ بھی کیا جائے گا۔ جی ملک بھر کی طرح اوکاڑا میں بھی کرونا وائرس جیسی مہلک وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس کے باعث حکومت کی جانب سے ضلع اوکاڑا ان چند خطرناک اضلاع میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لوگ حکومتی SOPs پر عمل کرتے نظر نہیں آ رہے۔ مزید وہاں کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری نیاز احمد سے۔ جی چودھری نیاز احمد، اب کیسی صورتحال ہے اوکاڑا کی؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع اوکاڑا اور اس کے مضافاتی علاقے اجرا، حویلی، بصیر پور اور منڈی احمد آباد میں اگر کرونا کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر حکومتی SOPs جو حکومت کی طرف سے جاری کی ہے بالکل اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو اس حکومت کی جو اس SOPs کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے ضلع اوکاڑا میں تقریباً اس وقت 2000 جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جس میں 177 جو ہیں وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں، جن میں 124 مریض جو ہے وہ ریکور ہو چکے ہیں اور 46 مریضوں کو گھروں میں آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ تو میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 5 مریض اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور 7 جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو بالکل حکومت کی جانب سے بار بار حکومتی SOPs پر عمل کرنے کے حوالے سے یہاں پر آگاہی مہم بھی چلائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام اس پر بالکل عمل کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس لیے ضلع اوکاڑا کو پنجاب کے چند خطرناک ضلع میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے حکومت کی جانب سے بار بار یہی اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ خدارا گھروں میں رہیں، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں تاکہ اس قدرتی جو وبا ہے اس سے بچا جا سکے۔ جی راجن پور میں انتظامیہ گراں فروشوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ضلع بھر میں مہنگی اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کو لاکھوں روپے جرمانہ اور کارروائی کی گئی۔ راجن پور میں انتظامیہ کی جانب سے اشیاء خورنوش مہنگی فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ 6 ماہ کے دوران ضلع بھر میں 30 لاکھ سے زائد جرمانے کیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق گراں فروشی اور مہنگی اشیاء فروخت کرنا جرم ہے، جس کے لیے دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف پہنچایا جا سکے۔ حالیہ دنوں میں چینی کے ریٹ کم ہونے پر چینی مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہے اور مہنگی فروخت ہو رہی ہے، جس کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق منفرد اقدام یہ اٹھایا گیا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے فون نمبر اور واٹس ایپ نمبر بھی متعارف کروا دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی کارروائی کو جہاں عوامی حلقوں نے سراہا، وہی مکمل ریلیف نہ ملنے پر شکوہ بھی کیا۔ جام شورو گریڈ اسٹیشن کے
सीवरेज यार्ड में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 2 घंटे में 500 और 200 केवी का सर्किट बहाल कर दिया गया है। पावर डिवीजन ने तमाम वाक़े की इब्तदाई टेक्निकल रिपोर्ट तलब कर ली है। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि 500 केवी जामशूरो ग्रिड स्टेशन के सीवरेज यार्ड में आग लगी थी। आग लगने से हेस्को के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई। NDT और हेस्को की टीम्स ने आग पर काबू पा लिया है। 2 घंटे में NTDC कॉरपोरेशन 500 और 200 केवी का सर्किट बहाल कर दिया गया है। कराची को नेशनल ग्रिड से सप्लाई इब्तदाई ट्रिपिंग के फौरी बाद बहाल कर दी गई है। वफाकी वजीर पावर उमर अयूब खान ने बहाली के मुकम्मल ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी भी की है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी में आने वाले तातुल को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी है। नेशनल ग्रिड से बिजली की बहाली के बायस कराची की बिजली की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है। रिहायशी इलाकों में लोड मैनेजमेंट नहीं की जा रही। पतोकी में दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां थैलेसीमिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए दावत इस्लामी के अरकान समेत आम शहरियों के कसीर तादाद ने अपने खून के अतियात जमा करवाए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ शेख इमरान की इस रिपोर्ट में। पतोकी में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद मदीना में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद लॉकडाउन के पेश नज़र थैलेसीमिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए खून के अतियात जमा करना था। इसी सिलसिला में अमीर जमात दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अता कादरी की हदायत पर थैलेसीमिया और दीगर मरीजों के लिए मुल्क भर में 100 से ज़ायद शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। इसी हवाले से पतोकी में भी जामिया मस्जिद मदीना में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर और गिरदोनवा से इस्लामी भाइयों के साथ साथ दीगर सियासी व समाजी अरकान और आम आवाम की कसीर तादाद ने खून के अतियात जमा करवाए। दावत इस्लामी कैंप इंतजामिया पतोकी के मुताबिक अब तक 25,000 से ज़ायद खून के बैग ज़रूरतमंद मरीजों को फराहम कर चुकी है। तमाम मुसलमान मुश्किल की इस घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा खून के अतियात दें, ताकि मुतासरा मरीजों को बर वक्त खून की फराहमी हो सके। कैमरा टीम के साथ शेख इमरान, स्टार एशिया न्यूज़, पतोकी। अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि बिहाड़ी में मुल्तान रोड के करीब ट्रक और मजदा में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में जाँ बहक होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले शख्स की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पंजाब बैंक शादरा ब्रांच के बाहर बिल जमा करवाने वालों की SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बैंक अमले का अवाम के साथ नारवा सलूक। पंजाब बैंक शादरा मोड़ ब्रांच के अमले की मनमानिया ड्यूटी टाइम ख़त्म होने से पहले ही पानी के बिल लेना बंद कर दिए हैं। बुजुर्ग शहरी, मरीज और ख़वातीन घंटों लाइन में खड़ा रहने के बावजूद बिल जमा नहीं करा सकते। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ HM फयाज अपनी इस रिपोर्ट में। जी, जदीद दौर और नए पाकिस्तान में फरसुदा निज़ाम की मिसाल देखनी हो तो पंजाब बैंक शादरा मोड़ ब्रांच का चक्कर लगा लिया जाए, जहां बैंक अमले के रवैयों से अवाम परेशान और मायूस हो चुकी है। नए पाकिस्तान में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर ख़त्म ना हो सका। बैंकों के बाहर खड़ी अवाम शदीद गर्मी और हब्स में घंटों लाइनों में खड़ी रहती है। SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ बैंकों के सामने नज़र आती हैं। तहसील फरोजवाला की अवाम के लिए पानी के बिल जमा कराने के लिए पंजाब बैंक शादरा मोड़ की एक ही ब्रांच है, जहां इमामिया कॉलोनी, उमर पार्क, मतीन गार्डन, फरोजवाला की आवाम पानी का बिल जमा कराने के लिए इस ब्रांच का रुख करती है। बिजली, गैस, टेलीफोन के बिल तो पंजाब बैंक के अलावा दीगर बैंकों में भी जमा कराए जा सकते हैं। तहसील फरोजवाला की आवाम के लिए एक ही बैंक मुख्तस करना आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती है। पानी का बिल सिर्फ पंजाब बैंक शादरा मोड़ की इस ब्रांच में जमा होता है। बिल जमा कराने वाले घंटों लाइन में खड़ा रहने के बावजूद बिल जमा नहीं करा सकते। आवाम के मुताबिक तहसील फरोजवाला की कचहरी बैंक के बिल्कुल सामने होने की वजह से स्टाम्प पेपर भी यहीं से ही निकलवाए जाते हैं। बैंक का अमला अपनी दिहाड़ी लगाने की गरज से बिल जमा कराने वालों को नज़रअंदाज कर देता है। आवाम की सहूलत के पेश नज़र बैंक में इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम का कोई निज़ाम नहीं, जहाँ जान पहचान सिफारिश के ज़रिए ही आने वाले लाइन में खड़ी हुई आवाम के हकूक़ पर डाका डालते हैं। बैंक के सामने परेशान होने वालों ने कुछ इस तरह हमें बताया। अच्छा, क्या करता है ये, क्यों नहीं काम करने देता? ये काम ये स्टाम्प जो लेता है ना, जो रजिस्ट्री का काम है, उनसे पैसे लेकर उनका काम कर रहा है। बाकी एक स्टाम्प नहीं दीजिए, अगर किसी का काम नहीं। 9 बजे के हैं यहाँ, 10:30 बजे के खड़े हम।
और बिल नहीं जमा हो रहा है। आप सारे ऐसे बिल तो वाले स्टाम्पों का काम कर रहे हैं जी, स्टाम्प और रजिस्ट्री बिल नहीं जमा हो रहा है। जमा नहीं कर रहे, सिर्फ स्टाम्प पेपर जमा कर रहे हैं और कोई बिल नहीं है जमा की ठीक ना दे रहा और किसी को नहीं बताया यहाँ पे फाइन 5 है। हम लाइन में खड़े हैं, कितनी देर से लाइन चल नहीं रही, ठीक है। या तो फिर हमें लाइन में खड़ा ना करें, बाहर टोकन सिस्टम लगाएंगे, जिनको टोकन मिला है उन्हीं को बारी आएगी, उनको दे अंदर। हम इतने लगा के बैठे हुए लाइन में बार कहते टोकन लाइन से लोगों लाइन अपने सिफारशी बंदे अंदर भेजते जा रहे हैं, सिफारशी अगे जा रहे हैं। या तो लाइन चलाए ना, जो लाइन में रिश्वत लाकर रजिस्ट्रियां दे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से समुद्री के शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन तो कर दिया गया, लेकिन बिजली के बिल और दुकानों का किराया कहां से दें? हुकूमत ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां जाहिद हनीफ से, जो इस वक्त कचहरी बाजार समुद्री में मौजूद हैं। जी मियां जाहिद, क्या कहना है शहरियों का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचहरी बाजार में, जिसको लॉकडाउन की वजह, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जो कचहरी बाजार समुद्री के तमाम बाजार जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिससे जो ताजर बरादरी है वो बड़ी परेशान है। मेरे साथ समुद्री के एक भाई मौजूद है, शहरी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। बताइएगा जी, कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासर हुआ है स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से? देखें जी, कारोबार तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल डेड हो गया है, बंद है, लोग बहुत परेशान हैं, ऊपर से बिल भी आ गए हैं, लोगों के लिए ये बहुत मसाइल बने हैं, परेशानी है। तो ये लॉकडाउन मेरी समझ में तो नहीं है, गवर्नमेंट को तो पहले चाहिए था कि लॉकडाउन खोलना ही नहीं चाहिए था, सब्र करती। अगर किया था तो ये टाइमिंग जो है ना हमारी, सुबह 9 से 5 बजे करते, कम से कम औरतों पर पाबंदी लगानी चाहिए कि 15 दिन 20 दिन औरतें घरों में रहें, क्योंकि एक औरत जब बाजार में आती है तो अपने साथ 5-7 औरतें लेके आती है, ठीक है, बच्चे साथ होते हैं, तो लोग बहुत मसाइल में परेशान हैं जी। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इसके बारे में सोचें। बीमारी भी है, हम ये नहीं कहते हैं कि कोरोना है, वबा है उसके, लेकिन कोई ना कोई इसका अल्टीमेट निकालना चाहिए। दुकानदारों को कोई रिलीफ देना चाहिए कि कुछ टाइम उनकी दुकानें खुले, कुछ टाइम उनकी बंद हो, या एक बाज़ार खोल दिया जाए, एक दिन एक बाज़ार बंद रह जाए, या टाइम कम कर दिया जाए। कारोबार लाजमी खुलने चाहिए। ये बताइएगा, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया है, शहरी तो पहले ही परेशान है, महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, हुकूमत की जानिब से वहाँ पर एक और पेट्रोल की शक्ल में उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। इस हवाले से जो है तक हुकूमत को चाहिए था रिलीफ देना, अवाम को लेकर रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोल की शक्ल में रात की तारीखी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मैं तो कहूँगा कि ये हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली है कि यही पंप रात के वक्त 500 से ज़्यादा तेल नहीं देते थे। जब तेल की कीमत बढ़ी तो इन्हीं पंपों से रात को बेचा का 50,000 का तेल ले लें। ये मिली भगत है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। पहले तेल नहीं था, अब तेल कहाँ से आ गया? देखे ना, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। तो हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए। मुझे नहीं समझ लगती, खान साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कबीना पता नहीं उनकी बातें नहीं मानती, वो कुछ करना चाहते हैं, उनकी कबीना उनको लोगों के सामने गंदियां करा रही है, ये ज़्यादती। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इमरान खान साहब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कबीना जो करने नहीं देती, क्योंकि कोरोना जैसी वबा जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई, जिसकी वजह से समुद्री के शहरी भी वो परेशान है। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद कर दिया, जिससे कारोबारी तबका जो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। जी खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां बदअमनी कम ना हो सकी। अमन अमान बहाल करने में पुलिस नाकाम हो चुकी है। आए दिन वारदातों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है, तो दूसरी तरफ अगवा बराए जवान की वारदातें भी कम ना हो सकी हैं। कल अगवा होने वाली कमसिन बच्ची के वरसा परेशान हाल हैं। उनका क्या कहना है, मजीद जानते हैं, अपने नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुर्रहमान के घर पर, जहाँ जिसकी कल 5 साला कमसन बेटी जो है वो गुम हो गई थी। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाया। वर्षा के हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जान लेंगे। या रात जो है वो अगवा की जो है एफआईआर तो दर्ज की गई है, मगर अभी तक जो है वो बच्ची को बाजियाब नहीं कराया जा गया। इस वक्त हमारे साथ वर्षा मौजूद है, वो बिल्कुल परेशान हाल है। उनका जो भाई है वो भी हमारे साथ मौजूद आए, उनसे बात करते हैं। सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कल दोपहर को 2 बजे मैंने अपनी बहन को 500 रुपये दिए थे कि वो दुकान से कुछ बिस्किट ले आए,
10-15 मिनट हो गए, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ दुकान वाले से पूछा कि वहाँ, उसने कहा कि यहाँ पर नहीं आई है। तो मैंने यहाँ पड़ोस में वहाँ कहीं ढूंढा तो नहीं मिली मुझे। फिर मैंने शहर सारा गलियों मोहल्ला ढूंढा तो नहीं मिली मुझे। फिर आखिरकार हमने शाम को पुलिस में पर्चा किया। रात को 11 बजे हमारी FIR हुई है और अभी तक कोई हल नहीं निकल के। अच्छा, आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है कि सर गिरफ्तारों को, डाकुओं को गिरफ्तार करे और हमें अपनी बच्ची बाजियाब करा दें। जी बिल्कुल, आपने उर्सा की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि फिलफोर SP साहब से हमारा ये गुजारिश है कि नोटिस लेकर हमारे जो कमसन बहन है उसको बाजियाब करा जाए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमन अमान की, तो अमन अमान बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। जो अगवा और डकैती की वारदातें हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जी, खबर है जैकबाबाद से, जहां थाना सिटी के इलाके में निजी मेडिकल सेंटर में इलाज नामौलूद बच्चा जाँ बहक हो गया। वो रस्म अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा है। नवाही गांव अब्दुल्ला लाशारी के सेंटर में नामौलूद बच्चे की हलाकत पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बच्चे के वालिद ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि नामौलूद बच्चे को ऑक्सीजन के लिए अस्पताल लाए थे, जहां पर इलाज की बेहतर सहूलियात ना मिलने और अस्पताल इंतजामिया की गफलत से बच्चा जाँ बहक हुआ, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी जानिब निजी मेडिकल सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल रशीद मेमन के मुताबिक एक रोज़ कबल बच्चे को इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था, जिसका वजन 1 किलो 200 ग्राम था। हमने इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे की हालत खराब होने से वो जानबर ना हो सका। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।